Hey guys, and welcome back to the channel. My name is Nishant Srivastava and I am your verbal ability guide for IPMAT and CUD entrance examination. For any details inquiry, you can call or WhatsApp us at 7524833567. This is the number. And join our Telegram channel. The link is in the description box, or you can search and blast us in the Telegram. So today we are continuing our mock series that we have started few days back. So today we are going to practice mock 6. It is the sixth part in the series, and today today's mock is in accordance with the IPM Rohtak majorly and somewhat of JIPMAT. Question asked comparatively रोहतक और जिपमैट के अकॉर्डेंस में है. सो ये मत कह देना कि इजी क्यों बना दिया या टफ क्यों बना दिया, जिसके भी लिए भी जैसा भी हो. सो लेट्स हॉप इनटू द सेशन. सो पहला, एज ऑब्वियस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो सबसे पहला पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही है. ओके, लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड यू मे पॉज और रीड मेरे साथ पढ़िए या तो फिर. ओके. By downgrading the monsoon forecast for the year to the deficient, the India Meteorological Department has pressed the panic button. Okay, deficient word use करके India Meteorological IMD ने panic button press किया. This simple statement है. The forecast now talks of 88% of long period average, down from the preliminary figure of 93%. 88% पे आ गया 93 से अराउंड. उसके बाद है the revised estimate is indeed cause for concern as it holds the possibility of the country being pushed into a drought situation. Simple. These are forward looking numbers, no doubt. Yet the signals can hardly be ignored. Finance Minister Arun Jaitley has sought to talk up the sentiment by suggesting that the fears are exaggerated. Exaggerated मतलब बड़ा करके बताया जा रहा है. Making it big. बहुत घुमा के या बहुत बड़ा करके किसी चीज, छोटी चीज को बड़ा करके बताना का मतलब होता है exaggerated. And he may well be right. Because the situations. Okay. Let's see. In his view, the geographical distribution of rainfall and its timing will matter more than the total volume of precipitation. The distribution of rainfall and its timing will matter more than the volume of the precipitation it is getting. Yet, the policy planners at the official and the monetary levels have not shied away from articulating their anxiety. Okay. मतलब पॉलिसी प्लानर्स एट द ऑफिशियल मतलब जो मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एंड मॉनेटरी कह सकते हैं लेवल्स पे जो भी बंदे बैठे हैं उनको इस चीज़ से अभी भी एंजाइटी हो रही है. ओके. द सेंटर हैज सेड इट इज़ रेडी to face the deficit monsoon. Okay. Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh has made it clear that the situation is being monitored on a daily basis and that a alternative plan is in the place. The immediate worry May task is to quickly devise an emergency plan to tackle the social and the economic consequences of a possible drought. Okay. Easily understandable है ये statement. In the near term, the government may do well to prepare a ready to roll out action program to provide farmers a support system and fallback mechanism. Fallback mechanism मतलब अगर कोई चीज़ गिर जाए, कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है जो उसको होल्ड ऑन कर सके. To ensure that they aren't consumed by the severity of the impact. Okay. Should there be a drought, this could well prove to be one of the toughest tests yet for an year-old Narendra Modi government. एक साल पुरानी की मतलब ये आई थिंक जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी उसके एक साल बाद का ये स्टेटमेंट है. पूरा किसी न्यूज़पेपर से ये लिया गया है, आपको बता दूंगा कौन सा है, हिंदू से लिया गया है. सो ये चीज़ इसके बारे में कहेगी है.
ओके, टू मिनिमाइज द एनुअल कंसर्न ऑन दिस फ्रंट, फ्रंट मतलब ऑन दिस फ्रंट मतलब ये सामने वाला फ्रंट नहीं है, ये फ्रंट वाला है कि जिस जैसे लड़ाई का फ्रंट होता है, वी कैन से द आर्मीज फ्रंट है ना, उस तरीके से यहाँ पे जो फ्रंट हमारे सामने आया है वो किसका आया है, ड्रॉट का आया है, तो उस फ्रंट के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट्स विल हैव टू गो बियॉन्ड द मेरे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन मतलब होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन है आगे। स्ट्रेटजीज एंड वर्क आउट अ लॉन्ग टर्म इरिगेशन प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर टू ऑप्टिमाइज द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल एज वेल। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल को भी बढ़ाने की बात कर रहा है वो, ठीक है। इफ द फोरकास्ट डज कम ट्रू, अगर फोरकास्ट जो भी एज्यूम किया गया है कि ड्रॉट आ जाएगा, हाउएवर इंडिया could be facing its 12th worst drought since 1950। 12वां वर्स्ट ड्रॉट है होगा अगर आया since 1950 के बाद। Already hit by the unseasonal rain during the Rabi season, this portends further trouble during the Kharif cycle। This could lead to a serious problem on the food front। फूड फ्रंट मतलब फूड के यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा ड्रॉट से, उससे फूड की प्रॉब्लम जनरेट होने लगेंगी। विद कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द प्राइस सिचुएशन, प्राइसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि ऑनियंस के रेट जो है बढ़ जाते हैं, 70 रुपीज़, 150, 200, वो इसी वजह से हो जाता है। कहीं ना कहीं बारिश फ्लड आ गया या कहीं ड्रॉट सिचुएशन आ गई, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। Okay, now already lack of rural demand is dragging the economy down। The inflation-focused Reserve Bank of India will have no more leeway to cut the interest rate in such a situation। Obviously RBI के वो कहना चाह रहा है, RBI के पास इंटरेस्ट रेट कट करने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो। 3 quick rate cut by the RBI totaling 75 basis points this year have not really seen a major reduction in lending rates by the bank at ground level, just a common statement। With mounting stressed assets and poor credit take off, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। यू जस्ट रीड, अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछता है इससे रिलेटेड, जस्ट कम थ्रू द पैसेज पे आइए और उसको यहाँ से टिक आउट कर लीजिए। इतने आपको इसको मतलब आपको उसको पूरा मेमोराइज या फिर इसका मीनिंग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू आर गेटिंग द एसेंस कि ड्रॉट के बारे में बात कर रहा है। अभी मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी बताऊंगा। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज सो फार चूजन टू बी रिलक्टेंट एक्टर इन द प्ले। रिलक्टेंट मतलब लूजिंग एक्टर, मतलब पीछे रहने वाला बंदा। The missing X factor has conspired with the existing shortfall in the capacity utilization to make the industry look forlorn। The situation demands proactive action। proactive मतलब आगे बढ़ के एक्शन करना, सिचुएशन की डिमांड करती है। अब सबसे बड़ी बात कि हाँ, मैं आपको बताता एक्शन प्लान आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली आप कभी भी आरसी पढ़े ना, तो साइड में आपको पेपर पेन तो मिलेगा ही, है ना। तो आप क्या करें, सिंपल सा एक फ्लो डायग्राम बना लें। क्या बना लें, फ्लो डायग्राम। इससे क्या होगा, और ये क्या है, फ्लो डायग्राम सिंपल कुछ नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कहा कि डेफिशिएंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा था, आप लिख दीजिए IMD ड्रॉट सिचुएशन इंडिया, फिर एक फ्लो डायग्राम बना दीजिए आगे करके, ठीक है। सॉरी, उसके बाद आप लिख दीजिए कि यहाँ पे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर की या ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उसके बाद लिख दीजिए कंटेंजेंसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं ना, कंटेंजेंसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, वो लिख दीजिए कि क्या प्लान है, एक छोटा सा मतलब आइडिया। इसी तरीके से आप एक फ्लो डायग्राम बनाते जाइए टिल द एंड ऑफ द पैसेज। इससे आपको क्या है ना, सॉरी, बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा पैसेज के थ्रू। आपके पास एक फ्लो डायग्राम होगा, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे पा सकते हैं आराम से। और अगर कोई बहुत डीप इन डेप्थ से बिल्कुल पूछ लिया है पैसेज से, तो आप पैसेज पे जाके दोबारा देख सकते हैं। लेकिन बार बार आपको अप एंड डाउन नहीं करना पड़ेगा इस फ्लो डायग्राम की हेल्प से। तो इसको यूज जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस बनाइए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, आराम से बनने लगेगा एक दो बार में। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, I'll allot around 5 to 10 seconds according based upon the question to you, and you are going to answer on your own, and then we will discuss the question। So इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 ही सेकंड दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
So I think you have read the question. So choose the appropriate title for the passage. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगना चाहिए। अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज हमें चूज करना है। क्या हो सकता है भाई? इसमें बात किस बारे में की गई है? पहली बात तो मॉनसून वरीज के बारे में, सॉरी वरीज अभी आप देख लिया वर्ड तो बात अलग है, लेकिन आप समझिए मॉनसून के बारे में बात की गई है पहली बात तो, ठीक है। और क्या बात की गई? ड्रॉट के बारे में बात की गई है, ठीक है। और क्या बात की गई? कंटिजेंसी प्लान के बारे में बात कही, मतलब बैकअप प्लान। कंटिजेंसी मतलब बैकअप प्लान, ठीक है। और क्या बात की गई है? अगर हम लोग पीछे थोड़ा सा जाके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा आरबीआई पॉलिसीज और मतलब मॉनेटरी बात की गई है। और क्या गई थी? मॉनेटरी बात की गई है, मॉनेटरी रिलेटिंग टू आरबीआई थोड़ी बहुत बात की गई है इसके पैसेज में, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन करेंगे तो येट अनदर डिजास्टर। डिजास्टर के बारे में कोई बात नहीं, अवेटिंग डिजास्टर भी नहीं कह सकते क्योंकि डिजास्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनी, उसने देखो कहा है इफ द फोरकास्ट डज कम ट्रू, अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो ड्रॉट लाइक। अब ये हो सकता था, लेकिन अगर ये कुछ होता ड्रॉट लाइक समथिंग, कुछ तो होता कि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इसमें, तो ऑब्वियसली ये तीन ऑप्शन गलत होगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, मॉनसून वरीज रियल और नॉट। अब यहाँ पे खाली मॉनसून वरीज होता तो ये भी क्या है, आधा अधूरा हो जाता। ये रियल और नॉट लगने की वजह से पूरा कॉन्टेक्स्ट बन गया इसका। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, डू इट ऑन योर ओन। The question says which of the following is true according to the passage। पैसेज के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए हैं ए बी सी में से ट्रू है, ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है द सेंटर हैज सेड इट इज रेडी टू फेस अ डेफिसिट मॉनसून। ठीक है, सेंटर ने कहा बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे तो उन्होंने बात की गई है, आई थिंक ओके, यहाँ पे बात की गई है, स्टेटमेंट देखेंगे नियर एंड नियर टर्म गवर्नमेंट, यहाँ बात की गई फॉल बैक मैकेनिज्म बनाएंगे उन्होंने कहा था। तो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दी डेफिसिट मॉनसून। अगर ड्रॉट की सिचुएशन बनती है तो दे आर प्रिपेयर्ड, ओके। स्टेटमेंट नंबर 2 द फोरकास्ट नाउ टॉक्स ऑफ 88% of the long period average down the preliminary figure of 93%। ये बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यूज भी करेक्ट हैं इसमें, ओके। सी स्टेटमेंट इफ द forecast does come true however India could be facing the first drought in 19 ओके। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये फर्स्ट नहीं था, यहाँ पे 12th था आफ्टर, सॉरी 12th था आफ्टर 1950, 12वां ड्रॉट था ये। तो स्टेटमेंट नंबर सी गलत हो गया, ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये भी ऑब्वियस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई एम गिविंग यू अगेन 10 सेकंड फॉर द क्वेश्चन, 5 सेकंड दूंगा इसके लिए। ओके, सो द क्वेश्चन सेज व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट the central and state government to minimize the annual concern on this issue। मतलब ऑथर ने क्या सजेशन किया है फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मिनिमाइज द एनुअल कंसर्न फॉर दिस इशू। इस इशू को कंसर्न मतलब जो भी कंसर्न है इसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चीजें बोली हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। द ऑथर सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड मेक प्रोमिसेस टू द फार्मर। क्या उन्होंने कहा है कि फार्मर से प्रोमिसेस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा है, स्टेटमेंट गलत है ये। The author suggests the government to make some shelters for affected farmers। ये भी कोई बात नहीं की गई है उन्होंने, ये स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं पैसेज में। Now see, the author urged both central and state government to go beyond mitigation strategies and take some concrete step for the affected ones। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। देखो ऑल ऑफ द तो ऑलवेज रूल आउट हो गया, अब बचा कौन सा स्टेटमेंट? यही, और ये सही भी है। क्यों सही है? बिकॉज ये वर्ड जो है मैंने कहीं मार्क किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। अगर मुझे याद आ जाए मैंने कहाँ मार्क किया था, चलो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने मार्क किया था शायद मिटिगेशन पॉलिसीज के बारे में, यहाँ कहीं बात हुई। ये देखो, या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड टू वर्क आउट इन लॉन्ग टर्म, ये गवर्नमेंट से ये कह रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे।
Again 10 seconds for the question. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं निगेटिव बात कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में मेजरली ये जो नॉट ट्रू वाला वर्ड लिखा होता है ना, ये जो है उन्होंने इटैलिक्स में लिख दिया होता है, ठीक है, या फिर कभी कभी नॉर्मली ऐसे ही लिख दिया होता है, आपकी नज़रों से वो निकल जाता है। आप एकदम से पूछा तो फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पैसेज ट्रू, आपने बिल्कुल जल्दी नहीं पढ़ा और आपने पढ़ा ट्रू, नॉट ट्रू नहीं पढ़ा। तो मेजरली स्टूडेंट सिली मिस्टेक इसे कहते हैं, यही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी होती है एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? फॉल्स स्टेटमेंट मुझे निकाल के देने हैं इनमें चारों में से। ओके, सो statement number 1, finance minister Arun Jaitley has sought to talk up by the sentiment गलत हो गया, finance minister Arun Jaitley has sought to talk up the sentiment by suggesting that fears are exaggerated। ये statement correct है, मैंने exaggerated की आपको meaning भी बताई थी और अरुण जेटली से related ही वो statement था, तो ये statement तो true है। क्या है ये तो true है। चलो statement number B पढ़ते हैं। The inflation focused Reserve Bank of India will have no more advantages to cut the interest rate in such a situation। अब देखो यहाँ पे कह रहा है will have no more advantages, और यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो उसने बात की गई थी, कहाँ गया, let me go to the inflation focused RBI will have no more leeway। अब leeway क्या होता है, अभी ये पता चल जाएगा आपको कि leeway क्या होता है। leeway मतलब होता है, एक मिनट क्वेश्चन लिखो, या लीवे मतलब होता है फ्रीडम। सो आरबीआई विल नॉट हैव द फ्रीडम टू कट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सच ए सिचुएशन, दैट वाज द स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, आरबीआई विल हैव नॉट हैव नो मोर एडवांटेज, एडवांटेज और फ्रीडम में फर्क है। सो है कि नहीं है, पहले ये बताइए, दोनों में फर्क है। लेकिन लेट्स रीड द स्टेटमेंट नंबर 3 ऑल्सो। Drought could lead to serious problems on the food front with consequences on the price situation। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है भाई, ठीक है। अब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ऑब्वियसली आंसर बी ही है। क्यों? क्योंकि एडवांटेज और फ्रीडम में फर्क होता है। लीवे इज फ्रीडम, और यहाँ पे नो मोर एडवांटेज की बात की गई है। यहाँ पे कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉरी हाँ, यहाँ पे कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा, और वहां पे कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई फ्रीडम नहीं होगी ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सके। दोनों बातों में फर्क समझ में आया आपको? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन कर पाओगे तो भी आप समझ जाओगे ऑप्शन नंबर बी ही आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द डे, 5 सेकेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई थी, अभी बताता हूँ। What does the author mean by the phrase contingency plan is in place? इसका मतलब क्या है? कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या बताया था मैंने? बैकअप, कि अगर कोई फॉल अप मैकेनिज्म होता है, कोई फेलियर होता है, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है, कंटीजेंसी प्लान है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। बैड प्लान इज इन प्लेस फॉर पुअर। बैड प्लान नहीं, गुड प्लान होना चाहिए ना, गलत। मिसप्लेस प्लान आर अफेक्टेड फॉर द इफेक्ट। मिसप्लेस प्लान होगा तो भैया चलेगा कैसे फिर? एडिशनल प्लान टू बी कैरीड आउट विद द फार्मर्स। एडिशनल प्लान कैरीड आउट विद द फार्मर्स, चलो एक बार को मान लेते हैं फिर भी। एडिशनल प्लान इन केस ऑफ प्रीवियस वन फेल्स, दिस इज द ट्रू। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन सही होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन डी मैच होगा क्योंकि ये मीनिंग के साथ मैच कर रहा है। दिस इज द बैकअप एंड इफ प्रीवियस वन फेल्स वी हैव एन एडिशनल प्लान इन सच अ केस। Moving to question number 6 of the day, which of the following is not the synonym words of mitigation? Okay, पहली बात तो इसका एंटोनिम, नॉट द सिनोनिम। देखो, नॉट सिनोनिम का मतलब ये नहीं होता है कि वो एंटोनिम मांग रहा है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि वो एंटोनिम्स मांग रहा है। एंटोनिम नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ कह रहा है कि सिनोनिम नहीं होना चाहिए। तो आपको जो भी सिनोनिम वर्ड्स हैं उनको हटा देना है।
या जो भी उससे रिलेटेड नहीं है उसको हटा देना, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, उसके लिए सबसे पहली बात है आपको इन सब वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। देखो मिटिगेशन की मीनिंग, यार मैंने सोचा तो मैं स्लाइड में इसकी मीनिंग्स आराम से डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आपको दिखेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, खासकर इस पे बोर्ड पे लिखना हो तो अच्छे से लिख भी लूंगा। चलो आई विल ट्राई माय बेस्ट, एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है। मिटिगेशन, सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट सुनना है। द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, ऐसा कोई एक्शन जिससे किसी चीज की सीवियरिटी कम हो जाती है उसे कहते हैं मिटिगेशन, ठीक है। पहला वर्ड, तो आई एम राइटिंग जस्ट स्मॉल, रिड्यूस क्या, पेनफुलनेस, सीवियरिटी मैं डाल दे रहा हूँ, सीवियरिटी विल डिफाइन ऑल द ऑफ समथिंग। सुनिए ध्यान से, लिखावट में मत जाइए। इंटेंसिफिकेशन बहुत छोटी सी, बहुत आपको पता ही होगा, इंटेंसिफाई करना इसका मीनिंग। जियोलॉट का मतलब क्या होता है, जियोलॉट, देखो इसका मीनिंग क्या होता है ना, अ पर्सन हु इज वेरी एंथुजियास्टिक एंड हैज स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अ पर्सन विद एंथुजियाज्म एंड विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ डाल रहा हूँ उसमें आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। एंथुजियाज्म, वीवी सेक्शन क्या होता है, किसी भी एनिमल या लिविंग पे एक्सपेरिमेंट करने का मतलब होता है वीवी सेक्शन। सेक्शन से आप याद रखिए, याद हो जाएगा। सिल्वन, मैंने ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया है जब मैंने एनालॉजी वाले क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में, आई थिंक मॉक 1 या मॉक 2 में कराए थे। ओके, सो सिल्वन का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा दैट सिल्वन। अब बात करते हैं मिटिगेशन की मीनिंग के, मतलब नॉट द सिनोनिम ऑफ द मिटिगेशन, रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ समथिंग। अब देखो वीवी सेक्शन तो बाहर ही हो गया बिल्कुल, ठीक है। सिल्वन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जियोलाइट भी हो, बिकॉज अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एक ही ऑप्शन बचता है, सॉरी इंटेंसिफिकेशन, किसी चीज को इंटेंसिफाई करना। क्यों अपोजिट है इसका, अब आप ये देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए, आप ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था नॉट सिनोनिम का मतलब एंटोनिम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऑप्शन में लाइए आप, इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं, मिटिगेशन से इसका कोई रिलेशन, और जो इसका रिलेशन आ रहा है इंटेंसिफिकेशन का, जो भी रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है एंटोनिम का ही। तो यहाँ मजबूरी है कि हम एंटोनिम हमें मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। नॉट सिनोनिम का मीनिंग मतलब यहाँ एंटोनिम कह रहा है। मिटिगेशन का मतलब है टू रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ समथिंग, इंटेंसिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को इंटेंसिफाई, बड़ा कर देना, सीवियर बना देना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस ऑप्शंस कठिन थे। नाउ लीवे, मैंने कहा था ना लीवे की मीनिंग बताऊंगा, यहाँ भी सही कह रहा है, नॉट द एंटोनिम। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन को मिला के पहले। लीवे का मीनिंग होता है फ्रीडम, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, लीवे का मीनिंग होता है फ्रीडम। सो नॉट द सिनोनिम, तो फ्रीडम तो ऑब्वियसली हट गया, ठीक है। अब इसका नॉट द सिनोनिम मतलब रिस्पेक्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, ऑप्शन बता कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉट सिनोनिम का मतलब भी एंटोनिम ही है, ओके। लेकिन हर स्टेटमेंट में ये जरूरी नहीं है नॉट सिनोनिम का मतलब एंटोनिम ही हो, ओके। ये चीज आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। यू नीड टू सी द स्टेटमेंट्स, मतलब सॉरी ऑप्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द डे, डिवाइस। डिवाइस की मीनिंग क्या होती है? डिवाइस की बहुत सिंपल सी मीनिंग होती है, कहते नहीं कि किसी ने कुछ डिवाइस कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया, टू फॉर्म्युलेट समथिंग, राइटिंग के लिए क्षमा प्रार्थी है, ओके। लेकिन आपको समझ में आएगा डिवाइस का मतलब है टू फॉर्मुलेट समथिंग। अब हर एक ऑप्शन की मीनिंग भी जानना जरूरी है, ओके भाई। सिनोनिम पूछ रहा, व्हाट इज अ सिनोनिम, ऑप्शन आपको मिल गया फॉर्मुलेट, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकियों की मीनिंग तो जाना जरूरी है। देखिए इसमें ब्रॉल इजी है, इसका मतलब होता है लड़ाई करना, ब्रॉल। एक आप कभी पता नहीं खेलते हैं कि नहीं, प्ले स्टोर पे गेम है, आप कहेंगे टीचर कैसा गेम बता रहा है, लेकिन हाँ सुनिए, एक गेम है ब्रॉल स्टार। तो ब्रॉल का मतलब होता है लड़ाई, फाइट्स। दूसरा वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट की मीनिंग क्या होती है?
रेटिसेंट की मीनिंग होती है अगर कोई किसी को कुछ ना बताना चाहे। इफ आई डोंट वांट टू टेल समथिंग टू समबडी, दैट इज अ रेटिसेंट। ठीक है, रेटिसेंट की मीनिंग मैं यहाँ डाले दे रहा हूँ। रेटिसेंट इज नॉट वांटिंग टू टेल समथिंग टू अदर्स। ठीक, उसके टेनिस, सॉरी टेनिस नहीं है ये, टेन्यूअस है। टेन्यूअस की मीनिंग क्या होती है? समथिंग दैट इज वेरी वीक और अनसर्टेन, वेरी वीक और अनसर्टेन। अब ये वीक और वीक आप ये समझिएगा नहीं फिजिकली बात कर रहा है, वीक मतलब सिचुएशनल की बात कर रहा है। इट इज सिचुएशनली वीक। कोई चीज सिचुएशनली वीक हो और अनसर्टेन हो तो उसे कहते हैं टेन्यूअस। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन आंसर था, पहले मार्क कर दिया था हम लोगों ने। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम वर्ड फॉर प्रोटेन। प्रोटेन की मीनिंग क्या होती है सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रोटेन की मीनिंग होती है दैट अ साइन फॉर फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट के लिए जो भी साइन होते हैं ना प्रोटेन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक वर्ड को निकालते हैं अलग अलग, इसका डायसेक्शन करते हैं। पहला वर्ड है रेसेंट। रेसेंट का मीनिंग क्या होता है? टू ऑफिशियली स्टेट दैट a law or a copy or a legal document is not, that a law or a copy or a legal document आप मान लीजिएगा is not valid। अब से ये लीगल डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीज लॉ वैलिड नहीं है, इसका मतलब होता है रेसेंट। अब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन की मीनिंग बहुत ही सिंपल है, स्टेट ऑफ डोरमेंसी और इनएक्टिविटी। स्टेट ऑफ डोरमेंसी और इनएक्टिविटी। आज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए राइटिंग का, कल से मैं पीपीटी में ही इसकी मीनिंग डाल के लाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब की मीनिंग क्या होती है? प्रोस्क्राइब की मीनिंग होती है टू फॉरबिड एंड इन कॉन्टेक्स्ट विद लॉ। लॉ को फॉरबिड, फॉरबिड करने का मतलब क्या होता है? ना मानना। और प्रोफेसी बहुत लोगों को पता है, भविष्यवाणी। ठीक है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने को कहते हैं प्रोफेसी। यहाँ प्रोटेन का मीनिंग था टू साइन ऑफ द फ्यूचर इवेंट, यहाँ प्रोफेसी मैच कर जाएगा ऑब्वियसली। मैंने आपको सारी मीनिंग भी बता दी है। आप लोग प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे बाद में। लिख आप सुन के भी लेंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड होलिस्टिक। सिनोनिम बताना है होलिस्टिक का। होलिस्टिक मतलब क्या होता है? होलिस्टिक मतलब उसको लेके चलने वाला हो, सब चीज़ें कंसिडरेशन में आए। आंसर मैं इसका फर्स्ट बता दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको प्रेडिक्ट करें, तब तक मैं सबकी मीनिंग बताता हूँ। पहला वर्ड है माइनिटरी। क्या होता है? किसी को थ्रेट देना। ठीक है, माइनिटरी मतलब क्या होता है? टू गिव थ्रेट, टू समवन। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव मतलब इलेबोरेटिव, बढ़िया, हर चीज अच्छी तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करना कहते हैं ना, कॉम्प्रहेंसिव बुक है ये। जाइब की मीनिंग क्या होती है? ये भी नया वर्ड टाइप का है, बता चुका हूँ पहले भी। जाइब मतलब होता है टॉन्ट मारना, टॉन्ट। ये जब स्टेटमेंट आया था टॉन्ट वाला बहुत सारा, तब मैंने ये बताया था। होमली मतलब घर जैसा, होमली है ना। अब वो होलिस्टिक से एक ही चीज सेटिस्फाई कर रही, वो है कॉम्प्रहेंसिव। क्या? होलिस्टिक मतलब होता है किसी चीज को इलेबोरेट करके ढंग से काम करना, और वैसे ही होता है कॉम्प्रहेंसिव का मतलब भी होता है कि इलेबोरेटिव और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में किसी चीज को लेके। अब आज का क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आज 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मोर देन एनफ आपके लिए, जिसको देखिए। ये एक पैराजंबल टाइप कह सकते हैं या नंबरिंग क्वेश्चन, जो भी आपको समझ में आया, नाम अपने हिसाब से दे लीजिएगा, डजंट मैटर। क्वेश्चन ये है, ये मैटर करता है, और ये एक इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, ये मान के चलिए आपके जिपमैट लेवल का क्वेश्चन है। मैं इसको रोहतक नहीं कह सकता। हाँ, रोहतक अगर पेपर थोड़ा आसान बना दे, या कुछ हाथ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रोहतक में इजी वाले होते हैं, ये वो कैटेगरी के क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। टन्स ऑफ कार्बन एनुअली बाय 2020 बीच का स्टेटमेंट है ये, ऑब्वियसली पढ़ने से आ रहा है। जिम एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट
slash free cover by a free cover area by 5 million hectares MHA। ये स्टेटमेंट 1 हो सकता है, फिलहाल के लिए इसको स्टेटमेंट 1 मार्क कर देते हैं हम। टू एनहांस दी बीच का है एंड देयरबाय, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 हमारे सामने आ गया जो कि है 2, तो यहाँ कोने में लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करो ऑप्शन में कि 2 वाला स्टेटमेंट पहले 2 किस में है। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑब्वियसली सी हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बार फिर भी चेक करेंगे हम सी को। 2 के बाद 3 आता है, जिम एम्स टू इंक्रीज forest or tree cover area by 5 million hectares to enhance the quality of another 5 million hectare of cover forest and to thereby achieve annual sequestration of 50 to 60 million tons of carbon annually by 2020। बिल्कुल सही। देखिए एक ही बार में पकड़ लिया गया, इसलिए मैंने कहा आसान है, इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने तो जिप मैट लेवल का क्वेश्चन बताया है। जिप मैट में आएगा, सीयूटी में भी आएगा, रोहतक के इजी वाले पार्ट में भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन थोड़ी आसान आ जाएगा, ये रोहतक का है। पढ़िए, 6 स्टेटमेंट डाले मैंने इस बार इसमें, 5 ही जगह, मजा आएगा, पढ़िए। ओके, मैं ही पढ़ता हूँ, बेटर रहेगा, आप लोग पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, while the candidature of Bihar Governor Ram Nath Kovind on behalf of ruling party was surprised, the response from opposition in naming former Lok Sabha Speaker Meera Kumar was anything but that. Okay, it may have the trapping of an ideological battle, but the 2017 presidential election has become a platform for political messaging with, ये तो बीच का स्टेटमेंट था, ऑब्वियसली इसने बीच में बात की, बात कंटिन्यू कर बात है ना, with the Bharatiya Janata Party fielding on old party hand from the Dalit community, the opposition parties led by the Congress felt constrained in following the suit. Okay, however, the President Narendra Modi and the BJP President Amit Shah chose someone less known, ये भी बीच का स्टेटमेंट है, दे में है वो, ये भी बीच का है। दिस लैंड दे, एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग मिल जाता है तो आपको स्टार्ट करने में बड़ी आसानी होती है। दिस लैंड दे अनफॉर्चुनेट इम्प्रेशन, ये लास्ट स्टेटमेंट मुझे लग रहा है, लास्ट नहीं है तो बीच का स्टेटमेंट है ये भी। सो अब क्या होगा, अगर हम ये पढ़ते हैं तो ये बीच का होगा। एक बार स्टेटमेंट नंबर 2 को सामने रख के देखते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में भी आप देखिए 1 और 2 ही पहले में ही है ना। सो 1 तो नहीं हो सकता, तो 2 को रखते हैं पहले, 2 रख दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने गौर की, जैसे आपने 2 रखा, 3 1 और 3, तो 3 भी कंफर्म हो गया, मिलाते हैं। इट मे हैव द ट्रैपिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल बैटल, बट the 2017 presidential election has become a platform for political messaging, with Bharatiya Janata Party fielding an old party hand from the Dalit community. The opposition parties led by the Congress felt constrained to follow the suit. उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, लेट मी चूज स्टेटमेंट नंबर 1, अगर इसके हिसाब से देखो इन दोनों में ज़्यादा है। ओके, टू फॉलो द कंस्ट्रेंट टू फॉलो सूट, एंड उसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। While the candidature from Bihar government Ram Nath Kovind on behalf of the ruling party was surprised, the response from opposition in naming former Lok Sabha Speaker Meera Kumari was anything but that। सही है, स्टेटमेंट मैच कर रहा है, तो 2 3 1 मौके पर मिल गया। ये हटा दो, ये हटा दो, हट गया ये दो, और अब हमारे पास बचता है क्या, सिर्फ बी और सी। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट होगा ना हमारे पास, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। अब 2 3 1 हमारे पास आ गया, अब 4 और 6 में चूज करना, बाकी सारी गाड़ी ठीक हो जाएगी अपने आप। 2 3 1 हो गया है, मीरा कुमारी और पहले 4 चूज करते हैं। ठीक है, however the Prime Minister Narendra Modi and the BJP President Amit Shah chose someone less known। ठीक है, और अगर इसकी जगह स्टेटमेंट नंबर 6 रखते हैं, while the candidature, अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 फिर से पढ़ते हैं, while the candidature from Bihar government Ram Nath Kovind from a Bihar ruling party was surprised, the response from the opposition in naming former Lok Sabha Speaker Meera Kumari was anything but that। This led to an unfortunate impression that the Congress and the other party had no clear choice of their own and were only waiting to react। ये से 5 है, they react,
They may have hoped that the BJP would feed someone from its old guard in order to set the stage for the contest between the candidature certain in saffron, मतलब saffron में डूबे हुए, and one with a secular report card. However, confining ये लास्ट था. However, कहीं भी however, therefore कहीं भी यूज हो तो मान के चलिए आपको लास्ट में ही स्टेटमेंट आएगा, तो ये however से कंफर्म हो जाता है. 231654 ऑप्शन चेक करते हैं. 23141654 सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर. अब ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, और अगर आप इसमें ट्रिक्स नहीं लगाएंगे तो आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, घंटों पढ़ते रह जाएंगे, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. जैसे हाउएवर से पता चल गया कि लास्ट स्टेटमेंट 4 हो सकता है. आप ये भी चेक कर सकते थे यहाँ से, ये 4 है, एक ही है, तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले डैम श्योर होना पड़ेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये भी एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है. अगर आप देखेंगे, पढ़ते हैं, क्योंकि 6 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें भी कम नहीं है, और स्टेटमेंट जितने ज़्यादा होंगे कंफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने 5, इसलिए 6 स्टेटमेंट. जनरली 5 स्टेटमेंट तक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आ जाते हैं, लेकिन मैंने 6 डाला है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. ठीक है, सो थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट को. क्या था? हाँ, एक बार नहीं जाता है. हाँ, द प्लान अहेड टू हैव अ पार्ट सॉरी The plan ahead to have a part of your money in something that is inflation friendly, ये बीच का है. This means obviously बीच का है. Get a skill to will throw out of income in the 70s, हो सकता है. Let me एक मार्क करें. Those planning for retirement must see what it feels like to have an inflation intake. देखो यहाँ inflation की बात ऑलरेडी कर चुका है ना. Inflation take giants bite off your money, learn about equity and invest, ये बीच का है. For example, obviously बीच का है. मेरे पास 2 स्टेटमेंट बचते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बचता है एक, और एक ऑप्शन नंबर 4 बचता है. इन दोनों में से पहले कौन सा चूज किया जाए इसके लिए? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट भी, आप लास्ट वर्ड भी चूज देखिएगा, 3 ही है. तो लेट्स गेट अ स्किल दैट विल थ्रो ऑफ इनकम वेल इन योर 70s. दोज प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट मस्ट सी व्हाट इज फील लाइक. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. अच्छा, ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं पूरे, पहला ही 4 ही है. ठीक है, 4 कंफर्म हो गया. अब उसके बाद 2 और 1 का ऑप्शन बचता है आपके पास. सो मेजरली 1 है तो 1 ही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी 2 चेक करना पड़ेगा. दोज प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट मस्ट सी व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव एन इन्फ्लेशन टेक जायंट बाइट्स आउट ऑफ योर मनी. इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन होता है 6% के हिसाब से होता है सालाना, मंदी से कहते हैं. ठीक, एंड 1 out of your money, plan ahead to have a part of your money in in something that is inflation friendly. Obviously स्टेटमेंट नंबर करेक्ट हो गया. यहाँ इन्फ्लेशन के बारे में बात बताया, यहाँ थोड़ा सा और उस पर इलेबोरेट किया इन्फ्लेशन को. उसके बाद अगर मैं चूज करता हूँ 4-1 वाले ऑप्शन, तो ये तो कट गया. ठीक है, ये 3 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, 4-1-2 4-1-2, तो 4-1-2 मैच कर गया. ठीक है, और बचा 6 और 5 में से चूज कर लेंगे तो काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. So 4-1-2, this means that you must have some asset that throws off income that rises over time. Learn about equity and how to invest in a structured and systematic manner. For example, rent will take, यही होगा. देखिए, इन्फ्लेशन यहाँ बताया, यहाँ इन्फ्लेशन के बारे में सिर्फ जिस दिया, यहाँ पूरी बात की. यहाँ बताया कि दिस मीन्स यू हैव टू हैव सम एसेट्स. यहाँ एसेट्स के बारे में कह रहा है, दैट थ्रो ऑफ इनकम दैट राइजेस ओवर टाइम. टाइम के हिसाब से जो भी इनकम हो रही है उसको, जो भी इन्फ्लेशन आ रहा है, मान लीजिए 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन आ रहा है ईयरली, तो वो इनकम जो आप अलग अलग एसेट्स में लगाएंगे, वो आपकी 6% को काट देनी चाहिए. कट कर मतलब वहां से भी आपका जो रिटर्न आ रहा है वो 6% के अराउंड ही आना चाहिए, जिससे आपकी इनकम बने, ना बने नहीं बने. सो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ एग्जाम्पल दिया है कैसे. Rents will typically rise over time and most contracts have annual escalation clause built into them. Obviously, option number 6, 4-1-2-6, ये 5 वाला तो काट दो. ठीक, अब बचा 3-5 या 5-3, अब देखना पड़ेगा इसमें. एक सेकंड, होल्ड ऑन.
फाइव चेक करते हैं, लर्न अबाउट इक्विटी, एंड 3 कह रहा है गेट अ स्किल दैट विल थ्रो ऑफ द इनकम वेल इन योर 70s, ठीक है। एंड लर्न अबाउट, यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि रेंडेंटिकली राइज के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की गई है, एनुअल एस्केलेशन के बारे में। उसके बाद क्या करना है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी वहाँ इक्विटी की बात हो जाएगी, ठीक है। लर्न अबाउट इक्विटी एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक मैनर, ऑब्वियसली SIP, स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक मैनर मतलब SIP, अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो SIP। एंड लास्ट स्टेटमेंट, गेट अ स्किल दैट विल थ्रो ऑफ योर इनकम, ये तो लास्ट स्टेटमेंट है कि आपको एक स्किल चाहिए जिससे आपकी जो थ्रो ऑफ इनकम है वो 70s में ही बनी रहे, ठीक है, दैट विल गेट टू योर 70s ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर डी eliminated and option number A is the right answer. This type of questions, previous one on this you will see in Rohtak examinations, maybe in Indore also, and you will not love them, obviously. Now some Rohtak and JITMAT type questions again. Fill in the blanks question है साफ साफ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, do not need to read this, दिख रहा है ना। The essence of freedom in a democracy, the essence of freedom in a democracy is that citizens are able dash in an informed fashion, ठीक, to exercise their rights, to exercise their right to choose in an informed fashion, may be correct। टू एक्सरसाइज, देयर नहीं होगा यहाँ पे, पहली बात तो देयर वो वाला हो जाता है, यहाँ देयर, यहाँ पे लोगों के बारे में बात होगी तो देयर नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया देयर वाला। टू एक्सरसाइज देयर राइट टू, डबल टू नहीं लगेगा, सॉरी, तो ये भी गलत, एक्सरसाइजिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ के ही समझ में आ रहा था। द एसेंस ऑफ फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सिटीजंस आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू चूज इन एन इन्फॉर्म्ड फैशन। Question number 15, and this is the, I think, last question of the day. Let me, political parties which try to weighted electioneering and extraneous factors so as to determine how citizens exercise their franchise dash can have no interested नहीं होगा, इंटरेस्ट होता तो काम चल जाता, हटाइए इसको। Can have no interest in providing good governance, may be correct। Can have no interest in providing, no, can have no interest in providing good governance, government कोई चीज नहीं होती, गवर्नेंस होता है या गवर्नमेंट होती है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन नंबर बी बचता है। Political parties which try to weighted electioneering with extraneous factors so as to determine how citizens exercise their franchise can have no interest in providing good governance। अब इसका मीनिंग क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे एक्सट्रानियस मतलब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, एक्सट्रानियस फैक्टर्स लेके आती हैं कि सिटीजन्स उनके कैसे उनकी फ्रेंचाइज पे आएंगे, है ना, फ्रेंचाइज मतलब कैसे उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करके बड़ी बड़ी चीज़ें करती हैं, इलेक्शन को वेटेड करती हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दे हैव नो इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी सरकार चलाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली तो सबको पता है ना, नई बात क्या है, कुछ नया बताओ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। ये 15 क्वेश्चंस आज मैंने कराया आपको। आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कह लीजिए या एक आइडिया मेरे पास मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने एक्सरसाइज किया था अपने टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था। देखिए पहली बात तो क्या है ना कि ये जो वीडियोस हैं ये आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी, और समझ में आ भी जाएंगी तो आप भूल जाओगे, यू विल जस्ट भूल जाओगे, क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। सो आप लोग कर क्या सकते हैं, देखो पहली चीज़ तो ये है कि आप मेरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद आप उसको चीज़ को राइट डाउन करें। मैं इसके फेवर में ही नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, यू हैव वेरी लेस टाइम। तो आप कर क्या सकते हैं, आप इसी वीडियो को जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आप मॉक सेक्शन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको चाहे आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके अपने हिसाब से एज पर योर कन्वीनियंस आप क्या कर सकते हैं, उसको बार बार देखिए। अगर आप
एक वीडियो को जनरली 3 से 4 बार देख लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ तो 80 to 90% चीज़ें तो आपको यूं ही याद हो जाएंगी। 10% की कोई बात नहीं करता है, वो इजी पोर्शन है ना। आपसे 10 जो टफ पोर्शन आपको लग रहा है, आपने वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा, यू हैव अंडरस्टूड दैट विच इज द टफ पोर्शन एंड विच क्वेश्चंस आर इजी। आप एक कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिए कि विच वर आर द टफ क्वेश्चंस। आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखिए और बार बार देखिए। मेरी यही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि बार बार देखिए, क्योंकि जितनी बार देखेंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लिखोगे भूल जाओगे। एक बार फाइनली लिख लो, बात खत्म हो जाएगी, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे वोकैब वाले वर्ड्स हैं, आप लिख के भी याद नहीं कर पाओगे, मीनिंग थोड़ी याद करने बैठोगे। जितनी बार देख लोगे आपको जरूर याद हो जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस है, ये मीनिंग है, ये सिनोनिम्स है उसके, एंड दीज आर दी एग्जांपल्स दैट आई हैव यूज्ड। सो आपको अच्छा आइडिया मिलेगा उसकी वजह से, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मॉक लगाते रहना, मॉक लगाना बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आता फिर भी मॉक लगाओ, आता है तो जरूर लगाओ। नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आएंगे। अरे भैया मॉक में अगर आप 60% भी स्कोर कर ले जाते हो ना, 50 से 60%, तो एग्जामिनेशन में आप 70% प्लस चले जाओगे ऑब्वियसली। तो इसकी टेंशन मत लो कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। 10 से 15% का डेप्रिसिएशन रहता ही है मॉक्स में हमेशा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मॉक में 100 में से 100 ले आऊँगा, नहीं आ पाएंगे भाई। 100% आप नहीं स्कोर कर पाओगे। मॉक्स बनाए इसीलिए जाते हैं, और जिस मॉक में आप 100% स्कोर कर रहे हो मॉक घटिया है। मैं मुंह को बोल रहा हूँ मॉक घटिया है, क्योंकि वो आपको सिर्फ क्या कहते हैं उसे लुभाने के लिए, वो आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए मॉक लॉन्च किया गया, उसका कोई फायदा नहीं आपको मिलेगा। सो जो भी मॉक्स अगर आप 50-60% कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 70-80% कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। 100% कर पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन इतने आसान है कि 100% नहीं कर डाले तो दिक्कत है। सो यही था आज का ज्ञान, लेके जाइएगा जरूर, काम आएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज निशांत श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट टुमारो with another mock. Thank you, good night, keep learning and keep smiling. Thank you.